الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ہم نے کہا تھا کہ ہم پڑھیں گے فعل مضارع کے تغیرات، ان کے چینجز آ جاتی ہیں مضارع کے اندر. پھر ہم نے کہا تھا اس کے بعد کہ جو فعل مضارع کے متعلق بیان ہو چکا ہے کہ اس کا صیغہ زمان حال اور استقبال، یعنی کہ فار پریزنٹ ٹینس اینڈ فار فیوچر ٹینس دونوں کے لیے آتا ہے. اگر اس کو صرف استقبال کے لیے مخصوص کرنا چاہیے نا، اگر مجھے کرنا ہے مخصوص مضارع کے معنی کو استقبال کے لیے، فیوچر کے لیے، تو تب میں کرتا ہوں استعمال حرف استقبال. کیا کرتا ہوں استعمال؟ حرف استقبال، جسے ہم بولتے ہیں پارٹیکل آف فیوچرٹی. وہ آپ لکھ سکتے ہیں. حرف استقبال مطلب ہوتا ہے پارٹیکل آف فیوچرٹی. ٹھیک ہے، پارٹیکل آف فیوچرٹی. س یا سوفا اس کو بولتے ہیں. س یا سوفا کو کیا بولتے ہیں؟ پارٹیکل آف فیوچرٹی. اگر اس کو صرف استقبال کے لیے مخصوص کرنا چاہیے تو س یا سوفا مضارع سے پہلے بڑھا دینا چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، س یا سوفا. اب یفعلو سے بن جائے گا سیفعلو، وہ ان قریب کرے گا. س کا مطلب ہوتا ہے ان دا نیئر فیوچر، وہ کرے گا ان دا نیئر فیوچر، کچھ ٹائم کے بعد ہی. اور سوفا کا مطلب ہوتا ہے ان دا فار فیوچر میں کرے گا، ان دا اچھا خاصا دور فیوچر میں وہ کرے گا. سوفا وہ کچھ مدت بعد کرے گا. س ان قریب ہی پر، سوفا کچھ مدت کے بعد کرے گا. ٹھیک ہے. س اور سوفا میں ہلکا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ س مستقبل قریب کے لیے آتا ہے اور سوفا مستقبل بعید کے لیے آتا ہے. یہی مسئلہ ہوتا ہے اس میں. ذیل کی مثالوں سے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو. اگر ہم بولیں گے سیعلم، وہ ان قریب جان لے گا. س کا مطلب ہوتا ہے ان قریب جان لے گا. سوف تعلمون، تھوڑی دیر بعد تم جان لو گے. تھوڑی دیر بعد تم جان لو گے. ہم نے کہا تھا کہ جب سوف آ جاتا ہے تو مطلب ہوتا ہے کیا؟ مستقبل بعید. سا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مستقبل قریب، نیئر فیوچر. یہ کیا ہوتا ہے؟ فار فیوچر. سننظر، ہم ان قریب دیکھیں گے. سوف اکتب، تھوڑی مدت بعد میں لکھوں گا. ترجمہ کرو. س اور سوف مجہول پر بھی داخل ہوتے ہیں. آپ بتائیے اس کا معنی. ٹھیک ہے. ستسألون، ستسألون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی بولتا ہے ستسألون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ستسألون، ستسألون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ستسألون، دیکھیے، سأل یسأل تھا نا یہ، اس کو بنتا ہے پھر مجہول کا صیغہ سئل یسأل. کیا بنتا ہے؟ سئل یسأل، پھر یسأل یسألان یسألون، تسأل تسألان یسألن، تسأل تسألان تسألون. ستسألون، ان قریب تم سب سوال کیے جاؤ گے. ستسألون. ٹھیک ہے. سوف تسألون، کچھ مدت کے بعد تم سب سوال کیے جاؤ گے، تم سب مرد سوال کیے جاؤ گے. ستکتبن، كتب يكتب، يكتب يكتبان يكتبون، تكتب تكتبان يكتبن، تكتب تكتبان تكتبون، تكتبين تكتبان تكتبن. ستكتبن، ان قریب تم سب عورتیں لکھی جاؤ گی. ستكتبن ہے یہ تفعلن کے وزن پہ. كتب يكتب، پھر تفعلن. ستكتبن، ان قریب تم سب عورتیں لکھی جاؤ گی. عورتیں نہیں مطلب فیمنائن چیزیں، اب عورتیں بولوں گا میں ایسے ہی فی الحال. ستعرفن کا مطلب کوئی بول سکتا ہے؟ دیکھ کیسے کرنا ہوتا ہے اس کو نا. پہلے انسان کو جانا چاہیے پہلے پورا بیسک کیور. وہ بیسک کیا ہوتا ہے؟ پہلے انسان کو بولنا ہے کہ اگر میں بول رہا ہوں ستعرفن کا مطلب کیا ہوتا ہے، میں دیکھوں گا پہلے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے. وہ کیا؟ عرف یعرف. عرف اس نے جانا، یعرف وہ جانتا ہے یا جانے گا. بنے اس کو اب سیغہ کس کا؟ مجھول کا سیغہ. عرف یعرف، عرف فعل کے وزن پہ، یعرف یفعل کے وزن پہ. تو عرف یعرف، تو پھر یعرف یعرفان یعرفون، تعرف تعرفان یعرفن، تعرف تعرفان تعرفون، تعرفین تعرفان تعرفن. آیا نہیں والا سیغہ؟ ستعرفن، ان قریب تم سب عورتیں پہچانی جاؤ گی. ان قریب تم سب عورتیں
پہچانی جاؤ گی. اگر یہاں پہ تو سوف تو عرفنا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ مدت کے بعد تم سب عورتیں، تھوڑی مدت کے بعد تم سب عورتیں پہچان جاؤ گی. سا کا مطلب ہوتا ہے مستقبل قریب کے لیے، اور سوف کا مطلب ہوتا ہے مستقبل بعید کے لیے. سوف تعلمون، تم جان لو گے کچھ مدت کے بعد. اتنا فرق نہیں ہے اس میں سوف اور سا میں، قریب قریب معنی اس کا آتا ہے. سوف نفتح، فتح يفتح، پھر تفتح تفتح افتح نفتح. سوف نفتح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آ، کچھ مدت کے بعد ہم کھولیں گے، کچھ مدت کے بعد ہم کھولیں گے. سوف نفتح. سيعلم، سيعلم، سيعلم غدا من الكذاب الأشر. سيعلم ده علم يعلم، ان قریب وہ جان لے گا. علم يعلم، يعلم ان قریب وہ جان لے گا. سأشرب ان قریب میں پیوں گا. سوف تنصران، دیکھیے نصر ینصر، ینصر ینصران ینصرون، تنصر تنصران ینصرن، تنصر تنصران. ٹھیک ہے، کچھ مدت کے بعد تم دو مدد کیے جاؤ گے. تنصرانی، نصر ینصر تنصران، تم دو مدد کرو گے. ہو گیا تنصران، تم دونوں کی مدد کی جائے گی. ٹھیک ہے، تم دو مدد کرو گے. سوف تنصران، ان قریب تم دو مدد کرو گے. دیکھیے، اور آپ کو مت آتا ہے یہ فل گردان کرنا؟ آپ کو نہیں آتا ہے اس پیٹرن کے حساب سے گردان کرنا؟ تو آپ کو ایپ ہے نا، وہ ایپ سیلف کانجوکیٹر ایپ میں نے آپ کو سینڈ کی تھی نا، وہ وہاں بس لگانا ہے روٹ ورڈ میں، آپ کو کیا عرفہ لکھیں گے آپ، وہ نکالتا ہے فل گردان. عرفہ عرفہ ساری گردان، ماضی کی، ماضی مجہول، مضارع، مضارع معروف، ساری ایڈیٹنگ کرتے ہیں وہ. لن، ان لن کئی اذن، لم لما لگاتے ہیں سامنے سے. وہ ہمیں آگے پڑھنا ہے اس کے بعد ہی وہ کیا ہوتا ہے، مطلب فل ایڈیٹنگ کرتا ہے وہ، دکھاتا بھی ہے، اس میں مسئلہ کچھ رہتا ہی نہیں ہے پھر. ایک کتاب بھی آتی ہے، چھوٹی سی کتاب، اس کا نام ہے تصریف الافعال. اس میں لکھی ہے لگ بھگ 1000 گردانیں اس میں لکھی ہے، چھوٹی چھوٹی سی کتاب ہے اتنی. وہ بھی آپ لا سکتے ہیں، لیکن ویسے گردانے انسان خود ہی سیکھتا ہے، ضرورت نہیں ہوتی ہے پھر کتاب لانے کی اس کے لیے. سید حبانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان قریب وہ دو جائیں گے. یذهب یذهبان یذهبون، ان قریب وہ دو جائیں گے. سوف تذهبین، ذهب يذهب، يذهب يذهبان يذهبون، تذهب تذهبان يذهبن، تذهب تذهبان تذهبون، تذهبین، ان قریب تو ایک عورت جائے گی. سوف تبعثون، بعث يبعث کا ہوتا ہے بیچنا یا زندہ ہونا مرنے کے بعد، والبعث بعد الموت، یا مبعوث کرنا بیچنا. اب دیکھیے سوف تبعثون، بعث یبعث بنائیے اس کو مجھول کا صیغہ، صيغة المجهول. بعث يبعث، يبعث يبعثان يبعثون، تبعث تبعثان يبعثن، تبعث تبعثان تبعثون. اور کیا ہم ترجمہ کریں گے؟ سوف تبعثون، کچھ مدت کے بعد تم سب بیچ جاؤ گے، تم سب بیچ جاؤ گے، یا تم سب زندہ کیے جاؤ گے مرنے کے بعد، تم سب کو ریوائیو کیا جائے گا، ریوائیو. تو شاید نیٹ ورک ختم ہو گیا تھا اس کو، نیٹ ورک ختم نہیں ہو گیا تھا اس کو، 5G نیٹ جاتا ہے اب، 4G رکھنا پڑتا ہے اس کو پھر. کہاں سے میں نے اب بولا تھا وہ تم سب کو آواز نہیں آئی ہوگی شاید یہاں سے. دیکھیں گے واپس یہاں سے. ہاں، بعث يبعث، يبعث يبعثان يبعثون، تبعث تبعثان يبعثن، تبعث تبعثان تبعثون، سوف تبعثون. ان قریب نہیں، کچھ مدت کے بعد تم سب بیچ جاؤ گے. سأسجد، ان قریب میں سجدہ کروں گا. سأسجد ان قریب میں سجدہ کروں گا. عربی بناؤ. ان قریب ہماری مدد کی جائے گی، بنائیے عربی. ان قریب ہماری مدد کی جائے گی. دیکھیے ہماری مدد کی جائے گی، کر رہے نہیں، کی جائے گی، یہ مجھول کا سے پیسو وائس. تو نصر ینصر نہیں، نصر ینصر. ان قریب ہماری مدد کی جائے گی، مطلب فیوچر بھی، مطلب مضارع لانا پڑے گا. نصر ینصر، ہماری مدد. ینصر تنصر تنصر انصر، ننصر کیا آئے گا؟ ننصر. ان قریب ہماری مدد کی جائے گی. سننصر، سننصر. اس ایپ سے لینی ہے ہیلپ. ٹھیک ہے، سننصر. دیکھیے تم دو لکھو گے، تم دو لکھو گے. بتائیے، تم دو لکھو گے مطلب فیوچر ٹینس ہے. کتب یکتب، یکتب یکتبان یکتبون، تکتب تکتبان یکتبن، تکتب تکتبان تکتبان. تم دو لکھو گے، تکتبان. کچھ مدت میں ہم جائیں گے، کچھ مدت میں ہم جائیں گے. بتائیے،
क्या बोलते जाने को, ذهب. हम जाएंगे, फ्यूचर टेंस. ذهب يذهب. يذهب يذهبان يذهبون. تذهب تذهبان يذهبن. تذهب تذهبان تذهبون. تذهبين تذهبان تذهبن. أذهب نذهب. कुछ مدت के बाद हम जाएंगे क्या आएगा, कुछ مدت के बाद तो نذهب. नहीं, سوف نذهب. कुछ مدت के बाद मतलब क्या हो गया, سوف. और सा हो गया अन करीब. سوف हो गया कुछ مدت के बाद. तो سوف نذهب. سوف نذهب. ये इतना आसान भी नहीं है गर्दान करना, मैं सीधे बोल रहा हूँ, ये इतना आसान भी नहीं है. थोड़ा बहुत आपको पैटर्न याद रहेगा ना, वो काफ़ी है. पहले पहले बोलना नहीं आता इंसान, उसको बहुत टाइम लगता है, बहुत प्रैक्टिस लगती है, बहुत किताबें पढ़नी पड़ती है. मुस्तकबल करीबा. अच्छा, तुम सब की मदद की जाएगी, बताइए, तुम सब की मदद की जाएगी. देखिए, पहले यहाँ पे आ रहा है तुम सब की मदद की जाएगी, ऐसा नहीं आ रहा है कि तुम सब मदद करोगे, तो मतलब हो गया यहाँ पैसे हुआ इसे. तो हम बोलेंगे नुसरा युनसरो. युनसरो युनसरानी युनसरून. तुनसरो तुनसरानी युनसरना. तुनसरो तुनसरानी तुनसरून. ठीक है. तुनसरीन तुनसरानी तुनसरना. लेकिन कि तुम सब की मदद की जाएगी, तुनसरून. हाँ. लेकिन मुस्तकबल करीब यहाँ से निकल ब्रैकेट में, मतलब सल आएंगे हम, क्योंकि हम मुस्तकबल करीब के लिए इस्तेमाल करते हैं. تنصر. और सौफ को हम इस्तेमाल करते हैं मुस्तकबल वही के लिए. हाँ. क्या बोलेंगे, स, शाबाश, सतुनसरून. تنصرون. सतुनसरून. वो दो औरतें जाएंगी, बताइए. ذهب يذهب. يذهب يذهبان يذهبون. تذهب تذهبان يذهبن. تذهب تذهبان تذهبون. تذهبين تذهبان. تذهبان. वो दो औरतें जाएंगी. नहीं नहीं, वो क्या, वो दो औरतें जाएंगी. यذهب يذهبان يذهبون. تذهب تذهبان. हाँ, तذهبان. वो दो औरतें जाएंगी. तुम सब लिखोगी. كتب يكتب. अबे लिखोगी मतलब फ्यूचर टेंस मुदारे. यكتب يكتبان يكتبون. تكتب تكتبان يكتبون. تكتب تكتبان تكتبان. तुम सब लिखोगी. तकतुबान. आज क्लास से बच के बहुत कम, बाकी सारे भाग रहे डर, डर से शायद. डरना नहीं चाहिए पढ़ने से कभी, ऐसे इंसान नहीं सीखता है. अगर इंसान सीखे ना बिना डर के 50%, डर से इंसान सीखेगा वो 0%. बेहतर क्या होता है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग. अच्छा, क्योंकि पूरा समझ नहीं आता इंसान को कोई चीज़. जब कोई पढ़ा रहा होता है ना टीचर, तो पूरा समझ नहीं आता, याद रहना चाहिए ये चीज़. ये नामुमकिन है कि 100% समझ आ जाएगा इंसान को. समझ खाली अपना आता है 100%, जो इंसान बोलते हैं हाँ ये ऐसा होता है. मतलब मैं पढ़ता हूँ टीचर्स का स्कूल में कॉलेज में, मुझे समझ नहीं आता है पूरा. इसको होती है बहुत सारे रीज़न समझ क्यों नहीं पूरा आ जाता है. या तो क्योंकि टीचर को होता है आदत पढ़ने का, वो थोड़ा तेज़ बोल रहा होता है अपने, उसको लगता है आपके साथ ठीक बोल रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ा तेज़ बोल रहा होता है क्योंकि वो हो गया, वो कहता है यूज टू अपने साथ, अपने के साथ. या ऐसा होता है कि उसको पूरा समझ खुद को नहीं आ गया होता है, इसलिए लोगों को समझा ही नहीं पाता है. या ऐसा हो जाता है कि वो सही टाइम पे पॉज नहीं देता है, कहाँ पॉज देना है ताकि वो डाइजेस्ट कर पाएंगे कहाँ पे. ऐसा भी होता है मसला. या वो करता है, डालता है कोग्निटिव लोड बच्चों के ऊपर, जैसे शायद मैं कर रहा हूँ इस टाइम पे, एक साथ बोल रहा होता है. या बच्चे रिविजन नहीं करते होते घर में, ये वजह होता है. ये सारी वजह होता है, समझ क्यों नहीं आ रहा होता है. फर्क क्यों नहीं समझ आएगा इंसान को कुछ भी, ये मसला होता है. उसने रिविजन नहीं किया होता है, ऐसी चीज़ें होती है. अच्छा, लेकिन सबसे बड़ा वजह होता है कि उसे खुद समझ नहीं आ गया होता है पूरी तरीके से. ये वजह हो गया होता है असल में. अच्छा, मुस्तकबल बईद. तुम सब औरतें देखोगी. तुम सब औरतें देखोगी. नज़ारा यंजुरु. ठीक है, मुस्तकबिल बईद. अब सऊफा के लाएंगे कि सल आएंगे, सल आएंगे. सऊफा. तुम सब औरतें देखोगी. तो नज़रा यंजुरु हो गया देखना. यंजुरु यंजुरानी यंजुरून. तंजुरु तंजुरानी यंजुरना. तंजुरु तंजुरानी तंजुरून. तुम सब औरतें देखोगी. तंजुरून. तो सऊफा तंजुरून. वो दो सवार किए जाएंगे. वो दो सवार किए जाएंगे, बताइए. सवार करने क्या बोलते हैं, रकीबा यरकबू, रकीबा यरकबू. यरकबू यरकबानी. लेकिन वो तो सवार किए जाएंगे, वो सवारी नहीं कर रहे, वो तो सवार किए जाएंगे. तो रुकिबा युरकबू. रकीबा यरकबू नहीं, रुकिबा युरकबू. ठीक है. युरकबू युरकबानी. बस युरकबानी, वो तो सवार किए जाएंगे, युरकबानी. वो वापस होगी. वो वापस होगी, होगा नहीं, होगी. वापस होने को क्या बोलते, रजा. रुजू करना, लौटना. रजा रजा रजाऊ.
लेकिन मसला क्या है, ये लाना है क्या, फ़िल माजी की मुदारिया, मुदारिया। तो हम बोलेंगे वो वापस होगी को रजा यरजिउ, यरजिउ यरजिआनी यरजिऊन, तरजिउ तरजिउ, हाँ वो वापस होगी तरजिउ, होगी, हाँ तरजिउ। वो सब वापस किए जाएंगे, वो सब वापस नहीं हो रहे, वो सब वापस किए जा रहे हैं, फ़िल मजहूल। तो रुजिआ युरजाउ, रजा यरजिउ नहीं, रुजिआ युरजाउ, वो सब वापस किए जाएंगे, वो सब वापस किए जाएंगे। अब बता, असल में अरबी मेरे साहब नहीं था ऑनलाइन क्लास को ना साल साल, अब लाता है ऐसा चीज़, अरबी में चाहिए ज़रूरी ऑफलाइन क्लास बोर्ड हो चाहिए सामने अच्छे से। अब किसी हद तक हम पढ़ पाते हैं अच्छे से, लेकिन असल में अरबी मांगता है क्या, ऑफलाइन क्लास ही। अच्छा फिर भी इंशाल्लाह फ़ायदा आता है ऐसे भी। वो सब वापस किए जाएंगे, वापस किए जाएंगे। तो रुजिआ युरजाउ, युरजाउ युरजानी युरजाऊन, वो सब वापस किए जाएंगे, युरजाऊन, ठीक है युरजाऊन। देखिए क्या बोल रहा है, स और सफ़ा के बयान से तुम ये समझ सकते हो कि इन हरूफ की वजह से मुदारे के सिर्फ माना में तगय्युर हुआ, है ना, मुदारे के सिर्फ मीनिंग में चेंज आ गई, मुदारे के सेगों पर कोई असर नहीं पड़ गया, वो वैसे रह गए, स तालमून 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 ही रह गया। बाज़ हरूफ ऐसे हैं कि उनके मुदारे पर आने की वजह से मुदारे के सेगों मतलब फॉर्म्स पे भी फ़र्क पड़ जाता है, और माना में तो हो गया ही, सेगों और माना दोनों में तगय्युर आ जाता है। वो हरूफ जो मुदारे के लफ्ज़ों और माना दोनों में तगय्युर करते हैं वो तीन किस्म के हैं। अब चेंज कैसी आ जाती है मुदारे के अंदर, वो जो चेंजिंग फैक्टर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, चेंजिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे मुदारे के सेगा के अंदर, मुदारे के फॉर्म के अंदर और मीनिंग के अंदर आती है तब्दीली, आती है चेंज, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वो होता है ये तीन, ये आप याद रखिए। आप तो ठीक खरे जहन में से चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले क्या है नासिब, दूसरा क्या है जाजिम, तीसरा क्या है नून, नून ताकीद। देखिए नासिब मतलब हो गया नसब देने वाले, यानी कि वैसे चेंजिंग एजेंट्स जिससे फ़िल मुदारे क्या बन जाता है, मंसूब, क्या बन जाता है, मंसूब, जिससे फ़िल मुदारे मंसूब बन जाता है। और जाजिम किसको बोलते हैं, या जज़म देने वाले, जिससे फ़िल मुदारे क्या बन जाता, क्या बन जाता है, मजजूम, क्या बन जाता है, मजजूम। और नून ताकीद, इसको बोलते हैं नून ऑफ एम्फेसिस, क्या बोलते हैं, नून ऑफ एम्फेसिस, ऐसा नून जिससे हम एम्फेसाइज करते हैं चीज़ों के बारे में। थुम्म लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह नहीं फरमाता है कि तुम्हें सवाल किया जाएगा नेमतों के बारे में, नहीं, अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हें ज़रूर ब ज़रूर सवाल किया जाएगा, यू विल श्योरली बी आस्क्ड, लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। आया ना कि लतुसअलुन्न, जो नून है इसको बोलते हैं नून ताकीद। हमें आगे पढ़ना है सब कुछ। तो नासिब या नवासिब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नवासिब, ठीक है, नासिब या नवासिब, नवासिब जमा इसका होता है, ठीक है। नवासिब क्या हो गया, बोलते हैं ना नासबी है, ये नासबी क्या हो जो अहले बैत को तान करते हैं, पता है उनको नासबी क्यों बोलते हैं, नासबी नसब, ऐसे बोलते हैं, नसब बोलते हैं गाड़ने कोई चीज़, है ना, नसब बोलते हैं गाड़ने को। बेकार पहुंच गया। अच्छा नवासिब किसको बोलते हैं, नवासिब, नासिब का जमा क्या आता है, नवासिब, यानी कि वैसे चेंजिंग फैक्टर्स, चेंजिंग एजेंट्स जो मुदारे को मंसूब बनाते हैं। जाजिम इसको बोलते हैं जज़म देने वाला, फ़ेल मुदारे को जज़म देने वाला, या जवाजिम, इसका जमा आ जाता है जवाजिम, जवाजिमुल मुदारे, नवासिबुल मुदारे, जवाजिमुल मुदारे, ऐसे बोलते हैं। जवाजिम हो गया जिससे फ़ेल मुदारे मजजूम बन जाता है। अब बोलेंगे कि क्या फ़ेल मुदारे मजरूर नहीं आते, मजरूर एंडिंग विद ज़ेर, या वो मरफू नहीं आता एंडिंग विद पेश। देखिए मसला क्या होता है, जो फ़ेल माजी होता है ना, फ़ेल माजी, फ़ेल माजी में मसला नहीं होता है, फ़ेल माजी मरफू आएगा मंसूब आएगा कि मजरूर आएगा, क्योंकि फ़ेल माजी होता है मबनी, क्या होता है, मबनी। और मबनी का मतलब क्या होता है, इनडिक्लिनेबल या नॉन डिक्लिनेबल या नॉन चेंजेबल, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, वो होता है मबनी, फिक्स्ड, जैसा है वैसा ही रहता है वो हमेशा हमेशा के लिए। तो माजी में मतलब फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना फ़अलता फ़अलतुम फ़अलतुम फ़अलती फ़अलतुम फ़अलतु फ़अलना, ज़िंदगी में हमेशा ऐसे ही रहते हैं, कोई फ़र्क यहाँ कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं आ जाता है, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। तो माजी क्या होता है, मबनी। लेकिन जो फ़िल मुदारे होता है ना, फ़िल मुदारे अब क्या आ सकता है, या तो वो मरफू आ जाएगा, एंडिंग में पेश आ जाएगा, वो जैसे वो आ जाता है यफ़अलु, यफ़अलान, वहाँ होती है अलग अलग मरफू की अलामत, वही समझना है, हम समझेंगे टेबल में, वो यहाँ पे बना आपको इतना खुराएगा अभी ना, लेकिन हम देखेंगे वो टेबल में ही, इसीलिए। दूसरा क्या हो गया, मंसूब,
मरफू मंसूब एंडिंग विद ज़बर। वो क्या सोचेगा जब नवासिब दाखिल हो जाएंगे मुदारे से पहले। अगर मुदारे से पहले नवासिब दाखिल हो रहे हैं तो मंसूब बन जाएगा। अगर मुदारे से पहले कोई चेंजिंग फैक्टर, कोई चेंजिंग एजेंट, कोई आमिल दाखिल हो ही नहीं रहा है, तो अपनी असली हालत पे रहेगा। अपनी असली हालत क्या होती है इसम या फ़ेल की? वो होती है मरफू की हालत। ये कर रहे हैं थियोरेटिकली याद। एक इसम या फ़ेल की असली हालत मरफू की हालत होती है। मरफू की हालत को बोलते हैं असली हालत, जिस पे अब एक इसम होता है जब तक उसमें कोई आमिल, कोई फैक्टर, कोई चेंजिंग एजेंट दाखिल नहीं हो जाता है। और आपको ये वाली बात भी याद रखनी है कि कौन सी बात? हाँ। अब देखिए, फ़ेल मुदारे मजरूर नहीं आ जाता है। इसका भी एक रीज़न होता है, मैं आपको बताता, वो भी अब सोचिए, थोड़ा मुश्किल है इसमें जाने से। देखिए, फ़ेल मुदारे मजरूर नहीं आता है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन मजजूम आता है फ़ेल मुदारे, क्या आता है? मजजूम। और मजजूम क्या होता है? एंडिंग विद जज़म। कब होता है ऐसा? जब जवाज़िम दाखिल हो जाते हैं मुदारे से पहले। जब मुदारे से पहले जवाज़िम आ जाते हैं, ऐसे चेंजिंग एजेंट्स, जज़म आ जाती है मुदारे के ऊपर। ठीक है। अब पता है इसको क्या बोलते हैं मरफू को इंग्लिश में? मरफू को बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक्यूजेटिव केस। एक्यू नहीं नहीं नहीं, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव। अब पता है नॉमिनेटिव क्या होता है? नॉमिनेटिव मतलब होता है जो नॉमिनेट हो गया होता है। एक सेंटेंस में कौन होता है नॉमिनेट? या तो सब्जेक्ट या तो प्रेडिकेट। इससे वो आती है खबर, वो क्या आती है? मरफू, खबर और मुब्तदा। जिन्हें नहव नहीं पढ़ा वो समझ नहीं पाएंगे। नहव पढ़ते हैं उन 57 वीडियोस में, मैंने वहां बोला था, लाख करोड़ बार बोलते हैं ये सब चीजें। और क्या? नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस क्या होता है? मंसूब। बोलते ना कि ही वॉज एक्यूज ऑफ रॉबरी, उसे इल्ज़ाम दिया गया था चोरी का। मतलब एक्यूजेटिव मतलब होता है जिस पे काम हो जाएगा। जब मुदारे पे नवासिब दाखिल हो जाते हैं वो मंसूब बन जाते हैं, वो आता है इन द एक्यूजेटिव फॉर्म। और मजरूर का बोलते हैं जेनिटिव केस, मजरूर को। जेनिटिव केस। अब वर्ब नेवर कम्स इन द जेनिटिव केस। देखिए, जिन्हें नाम पढ़ा है वो समझ पाएंगे, बल्कि आप कुछ 0%, 0 के 0, आप नेगेटिव भी नहीं समझ पाएंगे। मसला होता है कि क्या मतलब हो गया जेनेटिव केस? अगर आप बोलेंगे इन द हाउस, जो हाउस है ना वो जेनेटिव केस में है, क्योंकि वो प्रपोजिशन के बाद आ गया। इन के बाद आ गया हाउस। तो हाउस इज इन द जेनेटिव केस। हम बोलेंगे अरबी में क्या? फी बाई तिन। फी हरफ जर, बाई तिन इस्मुन मजरूर। ठीक है। और क्या था मुझे? हाँ। लेकिन अब फ़िल से पहले नहीं आ सकता है फी। हम नहीं बोल सकते फी यफ़अलु, इन ही इज़ डूइंग। यफ़अलु क्या होता है? ही इज़ डूइंग और ही विल डू। अब बना सकते हैं फी ही इज़ डूइंग, सॉरी, फी यफ़अलु नहीं है, फी यफ़अली नहीं आ सकता है, क्योंकि ऐसे आ ही नहीं सकता, ऐसे हम बोलते ही नहीं है, जबान इस्तेमाल करते ही नहीं है ऐसे। तो वर्ब नेवर कम्स इन द जेनिटिव केस। ये समझ नहीं आ गया वो कुछ भी नहीं, मैं यहाँ से बोलता हूँ, इसलिए आप छोड़िए इसको। हमने कुछ नहीं पढ़ा। हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। मैंने खाली ये कहा कि अगर फ़िल मुदारे से पहले नवासिब दाखिल हो जाते हैं, या नासिब हो गया एक नवासिब में से एक, तो फ़िल मुदारे मंसूब बन जाता है, एंडिंग में ज़बर बन जाता है। अगर फ़िल मुदारे से पहले जवाज़म आ जाते हैं, या जाज़म एक आ जाता है, तो वो होता है एंडिंग विद जज़म, या सुकून बोलेंगे, एंडिंग विद सुकून। और नून ताकीद होती है दाखिल मुदारे के एंड पे। उससे भी आती है चेंज मुदारे की माना और सेगा के अंदर। अब नासिब कौन है आपको याद करने हैं। नासिब ये चार होते हैं: अन, लन, कई, इधन। ठीक है। अन, लन, कई, इधन, इनके आप माना भी लिखिए साथ में भी यहाँ पे। अन का मतलब पता क्या होता है? अन का मतलब क्या होता है? अन का मतलब होता है कि, उर्दू में ना कि क्या 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 बोलेंगे इसको इंग्लिश में, कि को? अन, सो दैट। सो दैट अन, या अन क्या होता है? सो दैट लितअलमू अन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ताकि तुम जानो अन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। तो अन का मतलब क्या होता है? सो दैट। लन का मतलब क्या होता है? ये आप लिखिए। लन का मतलब होता है नॉट, लेकिन नॉट फॉर फ्यूचर टेंस। नॉट फॉर फ्यूचर। नॉट फॉर फ्यूचर। लिखिए आप साथ में, है ना? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम नहीं पहुंच सकते हो एक नेकी के एक बड़े दर्जे तक। हत्ता तुनफिकू, यहाँ तक कि तुम वो ना खर्चाओ, मिम्मा तुहिब्बून, जो तुम्हें महबूब होगा। जो तुम्हें महबूब होगा। मतलब मुझे कोई घर में आ रहा है, कोई मुसाफिर, मैं उसको दे रहा हूँ पुराने कपड़े। मसला क्या, वो कोई भी ले सकता है। मेरे पास नए कपड़े, मैं लाए थे कल कपड़े, मैं उसको वही दे रहा हूँ।
तब जाके बोलेंगे मैं नेकी के बड़े दर्जे पे हूँ। हदीस में आ गया कि, हदीस में क्या आ गया है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिhi। तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं है जब तक कि वो अपने भाई के लिए वो वही कुछ पसंद नहीं करता है जो वो खुद के लिए पसंद करता है। मुझे करना है पसंद अपने भाई के लिए जो मैं खुद के लिए पसंद करता हूँ। अब यहाँ पे एक आलिम अच्छा नुक्ता बोलते हैं। वो बोलते हैं कि इंसान करते हैं अपने लिए पसंद कि मैं सबसे आगे जाऊँ, दुनिया में, माल में, इज्जत में, हर चीज़ में आगे जाऊँ लोगों से। तो उसको करना है पसंद कि मेरा भाई मुझसे आगे जाए। उसको यही पसंद करना है कि मेरा भाई मुझसे भी आगे जाए। उसको उसको नहीं होना चाहिए जेलेसी, मेरा भाई मुझसे आगे जा रहा है, कुछ भी नहीं, अच्छा हो गया मुझसे आगे जा रहा है, ऐसा होना चाहिए मूमिन। उसको ईमान कामिल होगा दर्जे का। ऐसा मतलब नहीं होता है ला युमिन तो वो ईमान वाला ही नहीं है। तर्जुमा करना होता है उसको कमाल ईमान नहीं है। जैसे बोलते हैं मन गशना फलीस मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हमें से नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि धोखा देने वाला इस्लाम से बाहर है, खत्म मसला। मसला है कि उसको कामिल ईमान नहीं होता है। अब बोलते हैं मतलब वाइजाना अंदाज में ऐसे बोलते हैं तो चलो मुंह में नहीं, ये जोर कर, ये दो खुदूत। हालांकि वो होता है मुंह में, उसको पता है ईमान में क्या होता है, कमजोरी होती है उसको। जितना बड़ा धोखा उतनी बड़ी कमजोरी ईमान में। जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा ईमान में क्या, कमजोरी। इसको बोलते हैं उलमा कमालुल ईमान। उसको कमालुल ईमान नहीं पूछा होता है, मुकम्मल ईमान उसको नहीं होता है। अब लन का मतलब होता है नॉट फॉर फ्यूचर। लेकिन वाइज़ाना अंदाज में ऐसे बोलना होता है। जब इंसान वाज पढ़ता है वहाँ ना ऐसे बोलेंगे इंसान को, फिर सारे गुनाह भी करेंगे, मज़े करेंगे ऐसे, एंड बोलेंगे एंड पे बख्श दिए जाएंगे सारे। तो ये एक हिकमत होती है एक वाइज की, एक मुअल्लिम की, कि वो कैसे कहाँ पे कौन सी बात करनी है। अन लन कई इधन, कई का मतलब क्या होता है? कई का मतलब होता है कई अतारफ। कई का मतलब होता है ताकि, ताकि वो था कि ये ताकि है। वही ना, कई का मतलब क्या लिखेंगे आप, सो दैट। देखूंगा इसका मतलब क्या निकालेगा ऐसे चैट जीपीटी या गूगल देखेंगे इसका ऐसे। सो दैट ही मतलब होना चाहिए इसका। हाँ बोलते उस्ताद नत तेल, जब कश्मीरी में याद बोलूंगा मेरे समझ नहीं आ जाएगा आपको फिर वो। काई का मीनिंग होता है, हाँ सो दैट, बिल्कुल, सो दैट ही मतलब होता है इसका। या इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू, ठीक है। हम्म जैसे बोलेंगे दरस्तु कैसियन कई अनजहा, आई स्टडीड अ लॉट दरस्तु कैसियन कई अनजहा, सो दैट आई विल सक्सीड। कई अनजहा, कई हो गया सो दैट, अन भी क्या हो गया सो दैट, लन क्या हो गया नॉट फॉर फ्यूचर। अब क्या हो गया इधन, इधन हो गया टिल। यहाँ उर्दू वाले होंगे वो समझ नहीं पाएंगे। इधन का मतलब क्या होता है देन, देन, ठीक है। इधन में देखूंगा इसका मतलब क्या निकालेगा, ये वैसे देन नहीं होता है। इधन का मतलब होता है देन, ठीक है। इधन का मतलब हाँ देन या सो, सो कंसिक्वेंटली, ठीक है। सो कंसिक्वेंटली मतलब कंसिक्वेंटली, हाँ इसके बाद ऐसा हो गया उसके बाद ऐसा हो गया। जैसे हम बोलेंगे इन तदरुस इधन तंजह, इन तदरुस अगर तुम पढ़ोगे, इधन तंजह तुम कामयाबी पाओगे, देन यू विल सक्सीड। अगर आप बोलेंगे सअज़ूर का गदन, आई विल वेट, आई विल विजिट यू टुमारो, सअज़ूर का गदन इधन सअंतज़िरु का, देन आई विल वेट फॉर यू। तो इधन क्या हो गया देन, अन क्या हो गया सो दैट, लन क्या हो गया नॉट फॉर फ्यूचर, कई क्या हो गया सो दैट इन ऑर्डर टू, इधन क्या हो गया देन या सो कंसिक्वेंटली। और अन पता क्या होता है अन, अब मैंने कहा सो दैट, यह हो गया टू, इसका मतलब टू ना टू। जैसे हम बोलेंगे उरीदु अन अदरुसा, आई वांट टू स्टडी, या दैट भी होता है। जैसे हम बोलेंगे काला उसने कहा, अन काला अन जवा जमील, उसने कहा ही सेड दैट द वेदर इज ब्यूटीफुल, ही काला अन जवा जमील। इसमें बहुत डेलिकेट फर्क है, बाकी बाकी सारे का माना अलग सेम हो जाता है। अन लन का इन का मतलब सेम, बस लन के बगैर, नॉट फॉर फ्यूचर। ये फिर ऐसे खुद समझता है इंसान कंटेक्स्ट में मतलब क्या होना चाहिए। मतलब इंट्रिंसिकली ना इंसान मतलब समझ पाता है एक टाइम तक, जब इंसान को आता है एक टाइम, जब इंसान बहुत किताब पढ़ता है ना, किताब पढ़ रहा होता है, पढ़ रहा होता है, पढ़ रहा होता है। देखिए इंग्लिश में होता है ना मसला, जैसे एक लफ्ज़ होता है वो होता है इस्तेमाल वो जगहों पे, जब इंसान इंसान को पता नहीं होती है वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। जब इंसान किताब पढ़ रहा होता है ना, उसको एक आइडिया खुद ही आ जाता है, अच्छा ठीक है यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। वैसे होता है अरबी में भी, इंसान पढ़ता है 10 15 किताबें,
इंसान को लगता है कि यहाँ पे ये मतलब होना चाहिए, वैसा ही होता है फिर। होता है क्या, प्रैक्टिस के साथ ही, टाइम के साथ साथ ऐसा होता है। स्टार्टिंग में लगता है अरबी ग्रामर मुश्किल, मुझे लगता है पहले पहले इंसान को लगता है बहुत मुश्किल है ये अरबी, लगता है इंसान सीख नहीं पाएगा, खासकर नहव और सरफ दोनों चीज़ें। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान हो जाता है यूज टू इसके बारे में, फिर आसान लगता है। दुनिया के किसी भी इल्म से इंसान हो जाएगा ना एक बार यूज टू, वो लगता है आसान। यूज टू मतलब होगा ही, लगता है बहुत ही पहाड़ लगता है सिर के ऊपर, हर चीज़ में ऐसा हो जाता है। कभी इंसान सोचता है जो है टीचर उसको ज़्यादा आता है, उसको कुछ नहीं आ रहा होता टीचर को असल में। लेकिन उसको पता क्या हो गया, उसको हो गया होता है आदत पढ़ाने पढ़ाने, सो फिर खुद याद हो जाता है उसको। दुनिया में वरना किसी को जल्दी याद नहीं हो जाता है, कोई भी कोई भी फास्ट लर्नर नहीं होता है। हर एक ने प्रैक्टिस से सीखा होता है, टाइम के साथ सीखा होता है। मैं बोलता है पहले ना टीचर कैसे इतना याद रख पाता है चीज़ें, मतलब ये पढ़ाता है इतनी सारी चीज़ें खुद इतना कैसे याद किया होता है। मसला होता है ये होता है पढ़ाने से, खुद याद रहता है चीज़ें। आप पढ़ाई कोई सब्जेक्ट एक, आपको सारा याद रहेगा, पूरी किताब याद रहेगी आपको, एक एक पेज भी। सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है याद करने का कोई चीज़? पढ़ाना। कोई चीज़ है ना, उसको क्या बोलते हैं, कुछ कुछ फेगमेंट टेक्निक क्या बोलते हैं उसको कुछ। जब मैं चाहता हूँ मुझे कोई चीज़ याद है, मुझे पढ़ानी है वो चीज़, क्योंकि पढ़ाने के टाइम पे मुझे जहन के दरवाजे सारे खोलने हैं, मुझे बिल्कुल सही बोलना चाहिए। ठीक है। तो जब भी इंसान चाहते हैं कि मुझे याद करने की कोई चीज़, उसे वो चीज़ पढ़ाना चाहिए, खुद को ही पहले पढ़ाना चाहिए या किसी और को। देखिए यहाँ सिर्फ लन को बयान किया जाता है, यहाँ पे सिर्फ लन को बयान किया जाता है, बकिया इंशाल्लाह आइंदा बयान होंगे। ठीक है। देखिए लन क्या होता है। मुदारे के आखिर को क्या देगा, नस्ब, क्योंकि हमने कहा ना कि जो अन लन कई इधन ये नवासिबुल मुदारे में से होते हैं। तो मुदारे के आखिर को नस्ब देता है, यानी कि उसको मंसूब बना देता है, और नून एराबी को गिरा देता है। अब यहाँ से आपको समझ नहीं आ जाएगा ये चीज़ें क्या बोल रहा हूँ मैं, इसलिए हम जाएंगे नोट्स की ओर, क्योंकि वहाँ पे इसने अच्छे से लिखा है। लास्ट से उन्होंने कहा था ना कि वो आपको याद नहीं रहा होगा, क्योंकि वो भूल जाता है इंसान को लाख बार पढ़ने के बाद। बोलना तो, कोई इंसान डर जाता है बोलने से, मुझे भूल गया। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, बोलना इंसान के, मतलब इंसान का नाम, पता है इंसान का नाम कैसे बन गया है? अल इंसान मअखूद मिन निस्यान। इंसान वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम निस्यान, फॉरगेटफुलनेस। इतना इंसान को भूल जाता है। कल का खाना भी याद नहीं रहता, कल मैंने क्या सुन क्या खाया था। अब कैसे तैयार रहेगा इंसान को? एक मिनट। HISH। नोट्स नहीं मिल रहे। अच्छा मुझे हो गया ना, फॉर्मेट पे लिखना पड़ेगा वापस से। बाकी अब कल ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अभी है। पहले मुझे उतना ही मैं डरता था बोलने से ना, मैं बोलता इतना क्यों भूल जाता है। मुझे लगा कि फिर बाद में समझ कोई चारा है ही नहीं। बोलना इज इनएविटेबल, ला महला इंसान को भूल ही जाएगा कोई भी चीज़ जो भी पढ़ेगा वो। मतलब इंसान पढ़ता है किताब, मोटी मोटी ना किताब पढ़ रहा होता है, फिर इंसान होता है 1 साल। इंसान होता है जिसने किताब पढ़ी नहीं थी, ऐसा हो जाता है ना इंसान को। इंसान फिर बोलता है "अरे, मुझे क्यों भूल जाता है"। ऐसा मसला नहीं है, इंसान को भूल ही जाता है जब तक वो रिविजन नहीं करता होगा, पढ़ाता नहीं होगा वो चीज़। मैं बोलता फायदा क्या है पढ़ने का, इंसान पढ़ता है किताब मोटी मोटी, सुबह भूल गई होती है फिर कुछ टाइम के बाद। देखिए फायदा आ क्या होता है अंदर से। अंदर से मतलब वो इंसान देता है तो बाद में वो फायदा उसका क्या होता है। इंसान कभी सोचता है कि मैंने उस एग्जाम के लिए इतना प्रिपेयर किया था, एंड पे वो एग्जाम आ गया, मैंने किया, अब क्या फायदा आ गया? नहीं, फायदा बहुत आ गया होता है ना, न्यूरल कनेक्शंस बढ़ गए होते हैं इंसान को। इंसान फिर नई इन्फॉर्मेशन जल्दी ले पाता है, जब उसको पुरानी इन्फॉर्मेशन होती है बहुत सारी। इसमें बहुत फ़ायदा होता है ना इंसान को, लेकिन पता नहीं होती है। और खासकर लैंग्वेज सीखने से इतने बन जाते हैं न्यूरल कनेक्शन जितने दुनिया में किसी से नहीं बन सकते। इससे इतना हो जाता है, क्योंकि अगर लैंग्वेज ना होगी दुनिया, कोई इल्म सीख पाएगा इंसान? इंसान दुनिया का कोई इल्म ही नहीं सीख पाएगा अगर लैंग्वेज नहीं होगी। ज़रा इतना ही पढ़ेंगे। हाँ, क्लास जो ख़त्म हो गया वैसे भी। मेरी बातें खुश करती है लोगों को ना। मुझे माँ बोलती है चिक पे करा खुशक। ज़्यादा मैं ऐसे करता हूँ, मैं खाली ऐसी बातें कर रहा हूँ, ज़्यादा फिलोसफिकल बातें। फिर मैं ऐसे नहीं करता हूँ कसम, ज़्यादा वैसी बातें, मैं वैसी बातें कर रहा होता हूँ दोस्तों के साथ। फिर वो बोलते हैं अच्छा तेरी चेंज जाने का तो बहुत बात।
ایک منٹ کہاں پہ گئے؟ اخوات. ہاں انشاءاللہ کل پڑھیں گے باقی اب